اور سندھ اور پنجاب کی بات ہو رہی ہے بار بار، اور ظاہر ہے سندھ اور پنجاب کی بہت ساری سملیرٹیز ہیں. ہم نے سندھ سے بہت کچھ لیا ہے اور سندھ نے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ پنجاب سے لیا ہوگا. تو خصوصاً پنجابی زبان کے حوالے سے جو ادارہ بنایا گیا وہ بھی سندھی اکیڈمی اور سندھی اداروں سے متاثر ہو کر بنایا گیا اور اس کی ساری بنیاد اسی طرح رکھی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں تہذیبیں اتنی بڑی تہذیبیں ہیں، انہیں مل کر کام کرنا چاہیے. زبان، ادب، کلچر اور تصوف کے حوالے سے جو سملیرٹیز ہیں، صوفیزم کے حوالے سے، وہ میرے خیال ہے پہلے نمبر پر ہم رکھ سکتے ہیں. تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب سندھ میں کوئی کتاب چھپتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے لاہور میں. اور میں اب گزارش کرتی ہوں سید نور صاحب سے. مجھے شامی صاحب نے کہا تھا بہت زیادہ تقریریں نہیں ہونی چاہیے. نہیں چاہیے نہیں کہا تھا، بڑی تقریریں ہوں گی میں تھک جاؤں گا، تو تقریریں ختم کرنے لگی ہوں میں. تو سید نور صاحب ہمارے شہر کے، ہمارے صوبے کے، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے خوبصورت انسان ہے. بہت ساری فلمیں بنائیں، لکھیں، ڈائریکٹ کی، پروڈیوس کی، اور کامیاب ہوئیں پوری دنیا میں. چوڑیاں کی مثال ہی لے لیں کہ اس کو جتنی بار چوڑیاں فلم دیکھی جائے دل کرتا ہے پھر فلم دیکھی جائے. اور ابھی اس کا شاہ جی چوڑیاں کا دوسرا حصہ بنا رہے ہیں، آج کل پارٹ 2 اس کا بن رہا ہے. تو فلمی سنت کے حوالے سے آج کل فلمی شہر بن رہا ہے لاہور میں. تو ہمیں امید ہے کہ سید نور کی رہنمائی اس شہر کو حاصل ہوگی، کیونکہ ان سے سینئر اور ان سے بہتر کوئی ہدایت کار، کوئی پروڈیوسر ہمیں نظر نہیں آ رہا. کوئی ایک شخص جو رائٹر بھی ہو، ہدایت کار بھی ہو اور پروڈیوسر بھی ہو اور اچھا انسان بھی ہو، لوگوں کی عزت کرنے والا ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو. تو ہمیں بڑا فخر ہے شاہ جی کی دوستی پر، ان کی محبت پر، کہ جب بھی ہم گزارش کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں. شاہ جی سے بڑی محبت سے گزارش ہے کہ چند جملے اس کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. سر تقریر نہیں کروں گا، میں مشورہ دوں گا. خان صاحب کو ایک مشورہ ہے کہ آپ نے 4 زبانوں میں یہ اپنی کتاب شائع کی ہے، اب آگے کیا ہے؟ آگے ہے کہ اس کتاب پہ ڈاکومنٹری بنائی جائے، اس کو پریزرو کیا جائے تاکہ ینگسٹرز بھی دیکھیں اس سکسیس سٹوری کو. یہ ایک آپ کے کامیاب زندگی کی کہانی ہے، تو یہ تو بڑی انسپریشنل ہے. تو اس سے ینگسٹر بھی انسپائر ہوں، جو ہم جیسے 75 سالوں کے ہیں. انہوں نے کیا انسپائر ہونا ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. تو یہ ینگسٹرز کے لیے آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے، جو انسپریشن ان کے لیے بنے یہ کتاب اور آپ کی زندگی، آپ کی ٹریولنگ جو ہے. تو مبارک ہو آپ کو، بہت تھینک یو. بہت شکریہ سید نور صاحب. آج کل میری اپڑو صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں کئی عمرے کی ہیں، لیکن پچھلے دنوں رمضان میں جو عمرہ کیا ہے تو میں اس کی وہ لکھ رہا ہوں ایک کتاب کی شکل میں، سفر نامہ ٹائپ. تو کل میں نے کہا کہ سفر نامے کی کتاب بھی لے آئیے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں حج کرنے جا رہا ہوں 15 کو، تو وہ بھی ایکسپیرینسز جو شامل ہوں گے. پچھلی دفعہ یہ کافی دن مکہ مدینہ میں گزار کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں حج والے بھی اپنے تاثرات بیان کروں گا اس میں، اور پھر ایک کتاب کی شکل میں سامنے لے کر آؤں گا. اور ہم بڑی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا حج جو ہے وہ بخیر و عافیت ہو، اور آپ کو وہاں سے کچھ ایسی چیزیں عطا ہوں برکت والی، محبت والی، بھلائی والی، کہ جو دنیا میں لے کر چلیں. بڑی مہربانی. ابیب اللہ صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، تو مبارکباد 2 لفظوں میں. بسم اللہ. السلام علیکم سر، السلام علیکم. بہت بہت تھینک یو فار آپ کا لاہور میں آنے کا. پنجاب میں یہ بہت ضرورت ہے، پنجاب اور سندھ کے لوگوں کا اور بلوچستان. یہ ہم ایک ہی ہیں، پاکستانی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو. جیسے صاحب نے بات کی ہے کہ ڈرامے بھی ہونے چاہیے، ینگ جو ہے ہمارے بچے وہ بھی دیکھیں، ان کو بھی پتہ چلے. تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر سغرا صاحب کا، جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے. تو اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، ایسے ہی آپ کرتے رہیں. تو پاکستان زندہ باد.
बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और आज की महफिल के सदर और एक जिन पे हमें बड़ा नाज है, फ़ख्र है, पिलाक में पंजाबी ज़बान के हवाले से कोई तकरीब होती थी, शामी साहब को जब भी रिक्वेस्ट करते थे ये ज़रूर तशरीफ़ लाते थे। शहर में आपको पता है लाहौर में हर दिन कई तकरीबात हो रही होती हैं, और अभी भी जो हमारे दोस्त गए हैं वो मुन्नू भाई के हवाले से भी एक तकरीब हो रही है। तो शामी साहब स्पेशली यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़े मान की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। जनाब मोहम्मद खान ओबरो साहब से जो मिलना है, उनकी ज़ियारत है, ये बड़े हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बहन डॉक्टर सुगरा सदफ साहबा का कि उन्होंने इस तकरीब का अहतमाम किया और हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम आपसे मिल सकें और आपसे बात कर सकें। आपकी ख़ुद नविश जो है वो कुछ मैंने पढ़ी है और कुछ पढ़ूँगा, और आप एक मज़दूर रहनुमा भी रहे हैं और अब भी हैं, सियासी कारकुन भी हैं और सेल्फ मेड शख्स हैं। आपने इस मुल्क की सियासत को और इसके ट्रेड यूनियनिज़म को बहुत कुछ दिया है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये जो सिंधी और के तर्जमे और पंजाबी से ये इस किताबें बहुत कसरत से तर्जमा होनी चाहिए थी, और इस तरह के अदारे जो हैं वो हमारे कायम होने चाहिए थे। अफसोस इस तरफ तवज्जो नहीं हुई, ताकि और हमें यानी बहुत पहले आपसे मिलना चाहिए था, और लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। बात यह है कि ये जो कौम परस्ती है ना, अब पंजाबी होने के तौर पर असल में कौम परस्ती से तो हम कोई हमारा को मामला दुरुस्त नहीं रहा। हमारी कौम परस्ती जो है ना वो तो 1947 में गर्क हो गई। यानी जो पंजाबी कौम परस्ती थी, इसलिए हम ये सिंधी कौम परस्ती या पश्तून कौम परस्ती या उसको भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि पंजाब जो था ना उसके रहने वालों ने ही उसको डुबो दिया, और इतनी खूनरेजी हुई और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। तो जो पंजाब की तकसीम है वो एक बड़ा अलमिया है जो पेश आया, और पंजाब के अंदर ही जो है लाखों पंजाबी जो हैं उनको हिजरत करनी पड़ी, वो कत्ल हुए, घर बार छोड़ा, और पंजाबियों के हाथों पंजाबियों का ये असर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ आप पंजाबी की बात क्या करते हैं। अब हमारे जो दोस्त दूसरे हैं मशरक़ी पंजाब में, अब वो पछतावा उनको भी लाख है, लेकिन बहरहाल अब तो मामला बहुत आगे जा चुका। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इस तरह की हमारी महफ़िलें होनी चाहिए, और हमारी हुकूमतों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए। जो अहले दानिश हैं, अहले सियासत हैं, वो आएँ, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से वाकिफ़ हों, एक दूसरे को पढ़ें, एक दूसरे को समझें, ताकि हम मुल्क को आगे बढ़ा सकें। ज़ाहिर है पाकिस्तान को जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं हो सका, अभी भी जद्दोजहद जारी है, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान वैसा बन जाए जैसी हमारी आरज़ू है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हमें एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत नवाजिश, बहुत ही खुशी हुई है, और मैं बड़ा आज मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक तारीख़ी लम्हा है मेरा कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई है और आपके साथ बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए इसमें, भाई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए तो फिर नूर साहब बनाए,
यानी जिसने जो जिंदगी गुजारी है जिसने डॉक्यूमेंट, वो तो आप अपनी जिंदगी को डॉक्यूमेंट वो क्या करेगा। हाँ हाँ ये पहले हज कराएं, हाँ उसके बाद नहीं हाँ, बिल्कुल कराएं, लेकिन ये काम जो है हमारे अदालों के करने का है ना, डॉक्यूमेंट्री है तो पहले हज कराएं, अगर फिल्म है तो पहले फिल्म बनाए बाद में हज करेंगे। क्योंकि अब हमारे जो सकाफती अदारे हैं हमारे, उनको ये काम करने चाहिए ना। अब जाहिर है कि जिस शख्स ने जिंदगी गुजारी उसने तो गुजार दी, अब आप कहेंगे भाई कायदे आजम को आवाज़ देंगे भाई अपनी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, या गांधी जी आके बनाएं, ये तो हमें करना पड़ेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मोहम्मद खान अबड़ू साहब को ये किताब लिखने, अपनी हड बीती, अपनी राम कहानी, अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान लिखने पे, और जिस तरह मौसर तरीके से इसके बारे में सुना है कि उन्होंने ये किताब लिखी है, उसका आलम मुतरफ हो गया है। और उसका इजहार इस बात से भी है कि ये किताब सिंधी में लिखी गई, इसके तराजम मुख्तलिफ ज़बानों में हुए, अंग्रेज़ी में भी हुआ, बाकी ज़बानों में भी, और फिर इसको डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा ने पंजाबी ज़बान में तर्जमा करा के इसको छपवाया है। मैं डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको भी मुबारक देता हूँ, और मोहम्मद खान अबड़ू साहब को ख़ास तौर पे। इस किताब को पढ़ेंगे तफसील से तो और चीज़ें समझ आएंगी कि क्यों आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि न सिर्फ ये कि इनकी सिंधी में ये किताब लिखी, अगर ये मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हुई तो यकीनन इसमें वो एसेंस है, वो इंटेलेक्चुअली डेप्थ मौजूद है, ये ज़ाती तजर्बे मौजूद है, वो बेहतरीन तज्ज़िये ज़िंदगी के मौजूद हैं जो लोग समझना चाहते हैं, और ये किसी एक कल्चर से मुतल्लिक़ नहीं होंगे। इसीलिए इन्होंने इतनी मकबूलियत पाई है। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, डॉक्टर साहबा के शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये भी शुक्रिया कि मुझे ऐसा नालायक को उन्होंने बुला के इस पर दावत दी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जवाद जाफरी उर्दू डिपार्टमेंट के हेड रहे ने, माशाल्लाह बहुत बड़े शायर, मुहक्किक, दानिश्वर, टीवी पे बड़े ड्रामे लिखे, प्रोग्राम किए, तो एक हमा जैस शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब, दो लफ्ज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब अबड़ू साहब, शामी साहब, सैयद नूर साहब और दीगर दोस्त, सबसे पहले तो जनाब हम अपने पूरे पंजाब की तरफ से सिंध से आए दोस्तों को खुली बाहों के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। ये किताब जो है आबिती, ये डॉक्टर सुगरा सदफ साहबा ने मुझे कुछ रोज़ पहले इसका PDF भिजवाया और मैंने बड़े इश्तियाक से इसे पढ़ा है। वो अगरचे मुसन्निफ़ जो हैं वो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, लेकिन मैं जो कि लिटरेचर का आदमी हूँ तो मैंने बिल्कुल इसे पीस ऑफ लिटरेचर के तौर पे देखा है। हमारे यहाँ जो आबितियाँ लिखी गई हैं वो अगर उनमें से जो अक्सरियत है 99%, अगर उन्हें हम मुबालगा नामा कहें तो ये बेजा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन के साथ लिखा जाता है। उसकी एक वजह होती है कि उम्र के जिस हिस्से में लोग आबिती लिखते हैं ना, यार बेली जो उस सारे सिनेरियो का हिस्सा होते हैं वो कब्रों में सो रहे होते हैं, और जो दो चार बचते हैं वो भी किसी बयानिए को चैलेंज नहीं करते। तो आदमी खुल के अपने बारे में झूठ बोलता है जितना बोल सके, इसलिए मैंने कहा मुबालगा नामा। ताहम हमारे यहाँ बहुत अच्छी आबितियाँ भी लिखी गई हैं। हमारे यहाँ बहुत सी आबितियाँ तो जर्नैलों की हैं, थोड़ी बहुत जो हैं फिर शायरों अदीबों की होती हैं। अदीबों की आबितियों में जोश की आबिती ने बहुत, यादों की बारात ने बहुत नाम पाया है। ये आबिती मुझे लगी है एहसान दानिश की, जहाने दानिश की कैटेगरी में मैंने इसको रखा, क्योंकि दानिश साहब ने जिस तरह से एक माली की हैसियत से, गेट कीपर की हैसियत से, और अनारकली में खड़े होकर किस्से बेचे एहसान दानिश ने, और वो फिर सारा लिखा, और उन्होंने जो कुछ इस लाहौर में इज़्ज़त पाई थी कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं छुपाई, सब कुछ लिखा। मैंने देखा कि अबड़ू साहब ने भी अपनी इस हड बीती में या खुद नविश्त में
जो जो वाक़यात इन्हें पेश आए हैं, इनके ख़ानदान के बारे में, सिंध के बारे में, वडेरों के बारे में, इनकी जो ट्रेड यूनियनिज़म के बारे में, या इनके कौम परस्तों के साथ जो इनके ताल्लुकात, भाई हम तो पंजाब में किसी कौम परस्त को नहीं जानते, पंजाब में कौम परस्त होते ही नहीं। ये तो हमें जब हम बड़े हो रहे थे तो हम सुनते थे कि कुछ कौम परस्त सिंध में रहते हैं, कुछ रहते हैं अपना बलूचिस्तान में, और हम सब यहाँ बैठ के उन्हें गालियाँ दिया करते थे। तो आज एक कौम परस्त हमारे दरमियान मौजूद है। सच्ची बात है कि हमने एक कौम परस्त को पहली बार इतने करीब से देखा, मेरा जी चाहता है इन्हें छू के देखूं। और हमें बहुत देर से अकल आई कि असल तो सियासतदान होते ही कौम परस्त हैं। ये आते जाते लोग जो हैं ये सियासतदान थोड़ी होते हैं। मैं डॉक्टर सुगरा सदफ आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने दो सूबों के दरमियान एक मोहब्बत और खैर सगाली का पुल तामीर किया है। इस तरह के एक नहीं बहुत से पुलों की ज़रूरत है हमें, ताकि हम एक दूसरे की तरफ गुजर के जाएं आएँ और इस तरह महफिलें हों। आप कराची जाएं, कराची सिंध जाएं, सिंध वाले यहाँ आएँ। और आपने बहुत अच्छी ज़बान इस्तेमाल की है और आपको 2 क्रेडिट जाते हैं, ना सिर्फ किताब शाया की है बल्कि उसका तर्जुमा भी किया है। मैं ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों को भी इस खैर सगाली पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਲਬੀ ਮੌਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾ ਸੁਗਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, अस्सलाम वालेकुम। मैं किताब पढ़ांगा तो फिर कोई लिखांगा। बिल्कुल मैं किताब लैके जावांगा, पढ़ांगा तो इंशाअल्लाह ताला तो लिखांगे भी, तो इंशाअल्लाह जी तबलीग भी करांगे जी। बहुत शुक्रिया। बड़ी देर सिंध च रहे ने और सिंधी ज़बान इन्होंने आंदी है। सिंधी ज़बान की कई कहानियाँ और किताबें इन्होंने तर्जमा की हैं पंजाबी में। तो सिंध और पंजाब से बड़ा गहरा इनका ताल्लुक़ है। यूसुफ पंजाबी जी, बहुत शुक्रिया। जेके बि असांजा सिंध मां आयल महिमान उन्हनि खे भली कार था चऊं, जीअं आहिनि। आउं सम्झां थो त हिन किताब जी ज़रूरत जेकी आहे उहो पंजाबी में तर्जुमे जी वधीक हुई उर्दूअ खां, छाकाणि जो असांजा जेके बि हिते पंजाबी लिखारी आहिनि या असांजी हिते कौम परस्त तहरीक आहे, उहो उमें न आहे जीअं सिंध में आहे। सो असांखे हिते पंजाब में जेको आहे सो वेतर ज़रूरत आहे कौम परस्ती जी, पंहिंजी सियाणप जी, पंहिंजे लाइ जेको आहे पंहिंजे पाण खे मनाइण जी। सो पंजाब में जेकॾहिं पाकिस्तान में सभ खां वधीक आबादी पंजाब जी आहे, पर हो पंजाबी न आहिनि जेके पंजाबी हुअणु घुरिजनि। असल में नाले जा पंजाबी आहिनि। हिननि खे पंहिंजी तारीख़, पंहिंजे असल, पंहिंजे विरसे सां लगाव न आहे। मां सम्झां थो त अबड़ो साहब तव्हांजी जेकी किताब आहे हिन जी ज़रूरत वेतर आहे त हिन खे पंजाबी में तर्जुमो कयो वञे, ऐं जेके बि असांजा नौजवान आहिनि हिते या जेके पंजाबी पढ़ण वारा आहिनि, हुननि खे उतां जी जेके सूरत हाल आहे, सिंध जी कौम परस्ती जी सूरत हाल आहे, हुन खां आगाही बि थिए ऐं हुननि सां जेके लाॻापा आहिनि असांजा सिंध सां मज़ीद वेतर नज़दीक वेझे अचनि। असांखे ज़रूरत आहे हिन वेले पंजाब ऐं सिंध खे वेझे अचण जी, छाकाणि जेकॾहिं जेतिरो सिंधी अवेयर आहिनि, ॼाणू आहिनि पंहिंजी क़ौम सां, पंहिंजे विरसे सां या सियासत खां, असीं पंजाबी सियासत में त आहियूं पर पंजाब जी सियासत में न आहियूं, पंजाबी जी सियासत में न आहियूं। सो असांखे वेतर ज़रूरत आहे त जेके बि असांजा सिंधी भाइर आहिनि, सिंधी लिखारी आहिनि, हुननि जा किताब पंजाबी में तर्जुमा थियनि ऐं जेके असांजा पंजाबी कौम परस्त आहिनि या तारीख़ सां ताल्लुक़ रखण वारा आहिनि, हुननि जा किताब सिंधी में तर्जुमो थियनि। सो मैं तमाम दोस्तां ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਸਬਤ ਕੰਪਰੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮਸਬਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਕੰਪਰੈਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतने बड़े लोगों के दरमियान लाकर बिठा दिया। बुनियादी बात यह है कि मैंने किताब की बजाय उसका तर्जुमा पढ़ा है, तो मेरे पर दो जिम्मेदारियां थी। एक तो ये कि मैं उसे तर्जुमे की हैसियत से पढ़ता, दूसरा मामला ये है कि मैं उस उसलूब तक या उस वफूर तक पहुंचने की कोशिश करता जो मुसन्निफ़ का मंशा था। एक तो मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि उर्दू की या पंजाबी में अब ये तर्जुमा हो चुका है, तो ये इस खित्ते की अहम तरीन आप बीतियों में से एक आप बीती है। दूसरा, मैं बहुत लंबी चौड़ी वो नहीं कर सकता इस पे बात। वजह यह है कि अभी इसका बहुत ताज़ा है मुतालिया मेरे जहन में। पिछले 2-3 दिन में मैंने इसको पढ़ा। एक तो यह है कि इसको देखने के लिए ज़रूरी था कि इसका असल मतन के साथ भी मवाजना करके देखा जाता, लेकिन मुझे सबसे इस बात में इसमें खूबसूरत बात लगी है वो ये लगी है कि किसी शायर या किसी मुहक्किक के या किसी मुसन्निफ के मुखलिस होने की एक दलील ये भी होती है कि उसके बाकी साथी उसके साथ मुखलिस होते हैं। और आप देखेंगे मुतरज्जिम ने, यानी डॉक्टर साहब ने किताब पर सवाए इसके प्रिंट लाइन में और कहीं भी मुतरज्जिम की हैसियत से अपना नाम नहीं दिया। प्रिंट लाइन पर देना भी मजबूरी होती है, तो किताब के टाइटल पर या अंदर के टाइटल पर उनका नाम मौजूद नहीं है, तो ये भी एक तरह से इनके मुखलिस होने की दलील है कि इन्होंने उसका क्रेडिट लेना ज़रूरी नहीं समझा उस तरह से। दूसरी बात, मैं मुसन्निफ़ का ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अबू साहब का कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से वो पहलू तलाश किए हमारे लिए जिनको दूसरों तक पहुँचाना ज़रूरी था। एक शख्स की ज़िंदगी अपने लिए शायद उतनी अहम ना हो, या उसके वो जुज़ियात जिन्हें वो जीत चुका होता है, वो मरहले वो उतने उसके लिए अहम ना रहे हों, क्योंकि इन जैसा जो जद्दोजहद करने वाला आदमी है उसने आगे ही आगे देखना होता है। लेकिन रुक कर ये देखना कि मेरे ज़िंदगी के कौन से पहलू जो दूसरे दोस्तों के काम आ सकते हैं, और उनको फिर ज़ब्त तहरीर में लाना और फिर यूँ ले आना कि वो उसका एक पीस भी बन जाए, एक मास्टर पीस बन जाए। सो इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने अपने अहद को इतनी मोहब्बत से नवाजा कि अपने आप को उसमें हनूत कर देना, प्रिजर्व कर लेना ज़रूरी समझा। सो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इनके लिए दाद। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं मुबारकबाद देना जी बड़ो साहब ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ और एक फिल्मबदी शेर मैं डॉक्टर साहब पेश करना चाहना। ਸਿੰਧੀ किताब ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਹ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਾ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੂਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹ। थैंक यू वेरी मच। वाह 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 माशाल्लाह। चलो आ जाओ अमजद साहब इधर अपनी सीट पे। बहुत शुक्रिया सुगरा बुलाने के लिए आपका। आ रही है आवाज़ अब? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो सबसे पहले साहिब सदर शामी साहब हैं, साहिब सदर की इजाज़त से आप जो अच्छा साहिब सदर होने आपस में डिसाइड कर लें। तो मैं सबसे पहले इस महफ़िल के इनकाद के लिए सुगरा सदफ़ की शुक्रगुज़ार हूँ, और स्टेज पे हमारे जितने मौज़ूज़ मेहमान बैठे हैं उन सब की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि सिंध से हमारे जो मोहम्मद ख़ान नबरो साहब हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हम सब ने जिस तरह उनको वेलकम किया है, तो हमने उनको बताया कि पंजाब की धरती सबके लिए कितना दिल खोल के सबको वेलकम करती है। तो एक दफ़ा आप अपने लिए भी तालियां बजाएं सब पंजाब की। तो मोहम्मद ख़ान नबरो साहब, आपको इस आपकी हड्डबीती की शाद पे बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह तर्जुमे इधर के उधर और उधर के इधर शाया होते रहेंगे और लोग आपस में जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत मुबारक
کہ آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی اور آپ لاہور لے کے آئے تاکہ لاہوری اس کو پڑھیں اور مستفید ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا کافی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اچھی باتیں تو لکھ دیتے ہیں لیکن اپس اینڈ جو ڈاؤنس ہوتے ہیں اس کو آپ نہیں لکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہ آپ کی کتاب جو ہے یہ اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگی. سو بہت شکریہ. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਬੜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ. ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਿੰਧੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ. ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਅਨਵਰ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਖੁਦ ਨਸੀਰ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਾਮੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋਈ ਸੀ. ਔਰ ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਬੜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਵਡੇਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਗੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਯਕਮ ਮਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ. सोशल मीडिया पे भी कोई काम ज़रा सा अच्छा हो तो इतनी तारीफ भी करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं. तो अनवर चांडियो साहब से गुजारिश है कि चंद जुमले वहीं बैठे बैठे इनायत कर दें. बैठे बैठे बोल ऐसा ही सबसे पहले ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं सर अबड़ो साहब को. और मुझे खुशी है कि एक शानदार जगह पर एक शानदार लोगों के साथ इस किताब की रुनमाई हो रही है. ये किताब जब लिखी गई है तो सबसे पहले सिंधी में लिखी गई है. सिंधी में इस किताब का नाम है वंजन सूर संधा करे. ये शाद भिटाई के एक शेर से ली गई है. शाह भिटाई फरमाते हैं कक्कर मंझ कपार झुड़ नेणू न लहे जहड़ा मोजा सुपरी तहड़ा मेघ मल्हार खण अखियूं खिल यार त सूर वंजन संधा करे. बादलों की बात करते हैं, महबूब की खूबसूरती की और महबूब की याद में आँखों से बहते हुए आंसुओं की बात करते हैं. मगर इस किताब में अगर जानब मंजिल देखा जाए तो कि पॉजिटिव लफ्ज़ है. वंजन सूर संधा करे, दर्द कैसे गुम होते हैं, गुल होते हैं, फिशा होते हैं, ख़त्म होते हैं. यानी कि इस किताब में इन्होंने अपने पूरी जो दास्तान लिखी है. अबड़ो साहब वैसे मशहूर शख्सियत हैं, हमें इनको काफ़ी सालों से बचपन से जानते हैं. और सिर्फ इनकी CBA यूनियन के हवाले से नहीं, एक शागिर तहरीक में इसका बहुत बड़ा किरदार रहा है. CBA यूनियन में इसका बहुत बड़ा किरदार रहा है. उसके बाद इस वक्त भी सिंध में जो सिंधी अदबी संगत है वो पाकिस्तान की नहीं है, कहा जाता है कि एशिया की अदीबों की सबसे बड़ी संगत है. पंजाबी अदबी संगत हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, पंजाबी यूसुफ पंजाबी साहब. मैं खुद भी मेंबर हूँ, मैं सिंधी अदबी संगत का मेंबर हूँ और पंजाबी अदबी संगत का ही मेंबर हूँ. तो हमारी एक ही यहाँ पर मरकज़ी बॉडी है जो पूरे पंजाब को कवर करती है. सिंध में इसकी को 150 से ज़्यादा शाखें हैं, 264 यानी कि 250 से ज़्यादा उसकी ब्रांचेस हैं. हर ब्रांचेस एक ब्रांच बाकायदा काम करती है. सिंध में 2 इलेक्शन, गवर्नमेंट के इलेक्शन के सिवा 2 इलेक्शन सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं. एक हैदराबाद जेमखाना के और दूसरा सिंधी अदबी संगत के. जब सिंधी अदबी संगत के अदीबों में कहीं पर इख्तलाफ होता है, जब वहाँ पर अदीबों पर कहीं कोई मसाइल होता है तो उनको सबको कवर करने, इकट्ठा करने में जो मुहम्मद खान अबड़ो साहब का किरदार है वो काबिल दाद है. और ख़ास तौर पर इस किताब में इन्होंने अपनी नौजवानी की बातें और कौम परस्त जो तहरीक के हवाले से बातें, और फिर कौम परस्त तहरीकों में मैंने इसमें देखा है इंतहाई पॉजिटिव, डायरेक्ट सीधा सीधा लिखा है
कि कौन बेहतर काम करने वाले थे, कौन बेहतर काम करने वाले नहीं थे। इन्होंने सिंध की बात की है, और इस वक्त यानी कि जिस जगह पर और ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमतों के साथ, दूसरों के साथ जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही ये बड़ी बात है। ये वहाँ पर ये वो लोग थे जिसको एनलाइटनमेंट मॉडरेट कहते हैं कि सिंध में कोई भी किसी भी हवाले से अदीबों का, दानश्वरों का कोई काम हो तो उसको करवाने में, सरकार के आगे प्लीट करने में, पेश करने में बहुत कम लोग होते हैं। पंजाब में ऐसा कोई किरदार नहीं है। पंजाब में सरकार और दानश्वरों का आपस में ऐसा लायजा नहीं है। सिंध में सिंध का दानश्वर, सिंध का अदीब वहाँ की सियासी पार्टियों से ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा ताकत रखता है। यानी कि सिंध असेंबली में अगर कोई फैसला हो सकता है तो उसके पैरेलल अगर कोई हो सकता है तो वो सिंध की सिविल सोसाइटी है। सिंध की सिविल सोसाइटी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ पैरेलल निसाब बनाती है। सिंध की सिविल सोसाइटी सिंध की सियासी जमातों के साथ पैरेलल में अपना नज़रिया बनाती है। और आप इस पर नज़र रखते होंगे, आपको अंदाज़ा है। तो अबड़ो साहब उन शख्सियात में से हैं जो सरकार को भी जानते हैं, जो यूनियंस को भी जानते हैं, जो तलबा तहरीक को जानते हैं, जो वहाँ की कौम परस्तों को जानते हैं, वहाँ के अदीबों और दानश्वरों को जानते हैं। उसकी एक किताब जो सिंधी में प्रिंट हो और फिर वो अंग्रेज़ी में भी आए, उर्दू में भी आए और पंजाबी में आए। आज 1 अप्रैल को लाहौर में उसका इनॉग्रेशन हो। वजदान वालों को मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ, मैडम का और सबका। एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होने पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सर।